Life says experience me in whole, WHOLE. सुकून और जुनून का सही मिश्रण होता ना, उसे इंसान कहते हैं। समझ फिर भी आ जाता है बट एम्बॉडी नहीं हो पाता। समर्पण करके आगे बढ़ते हैं। 3-4 बारी तो मैंने अपनी डेथ को देख लिया। Like I don't want to wake up 50 one day and be like, oh, अगर मैंने ये किया होता तो काश ये हो गया होता, मैंने ये किया होता। Like I don't want regrets in my life. जितना अहंकार, जितना अहम कम हो, जितना I me myself कम हो, उतना शायद चीजें इजी हो जाती है, सिंप्लीफाई हो जाती है। तो मुझे लगता है आई ओपनिंग इंसिडेंट्स होते हैं ना, अचानक से मैं पार्टी कर रहा हूँ सिंगापुर में and all of a sudden in couple of hours he's not there. Mantras to live by, passion and peace. ये नाम एक लम्हे में छूट जाता है। प्रेम में एक और एक हो जाता है, अध्यात्म में एक और एक शून्य हो जाता है। Aloha, namaste and welcome to Beyond the Spotlight with Garima. Our guest for today is very special, whose journey has moved from cricket pitches in Delhi, Nach Waliye, Khatron Ke Khiladi, television, films, and now he's here today with us, Himanshu Ashok Malhotra. Welcome, thank you so much for being here. Thank you for inviting me here. How are you feeling? At peace at the moment? Yeah. Okay. So I've shared a little bit about your journey. Why don't you tell us something about yourself? I don't know यार, अपने बारे में क्या ही बताया जाए कि जितना समझ में आता है वो ये कि the Himanshu that he is sitting at the moment in front of you is the transformed or the muted Himanshu, I feel. From whatever the conditioning was, from whichever way I remember, you know, whatever things had happened and how we are born and brought up, वो सारी चीज़ों को uncover करके whatever I can find closest to myself is of course it's in the process right now, but yeah, something around that. Okay, and if you had to use 3 adjectives to describe, any 3 adjectives to describe this new transmuted, transformed Himanshu, what would you use? Love. That's I think the denominator of this being at the moment. Peaceful at every point. Yeah, the word that's coming, I don't know whether it's an adjective. It's something like leader or leadership. I don't know where it is just coming at the moment, and it's just coming. I can see it coming. Maybe it fits, maybe it doesn't fit. But love and peace for sure, yeah. And shunya probably. 0. Yeah. But I think even leadership does take also, since you just told me that, you know, now leading that from behind. Not from the front. I don't feel that's exactly what we have been taught. Probably the earlier Himanshu would have been wanting to lead in the front, but leading from behind is what I feel at the moment, that you let whosoever is with you do whatever they want to do. And then you just stand there and watch. And when they feel that they need something from you, any kind of assist or help or any kind of guidance or anything, then you just tell them. So you just stay like right behind. what does that look like in your real life? Like if you could share an example. I don't know. I think it's a part and parcel for everything. Like I was directing day before something like a short. So not you just let the other person, the co-artist, do whatever they want to do as well. Not impose everything that you have fixated or thought or pre-planned. As it is, that's not the way that I ever work with, because I feel वो creativity क्या जिसमें आज़ादी ना हो, और मुझे बंदिशों से काफ़ी तकलीफ रहती है। मुझे लगता है कि यार कलाकार हो तो कला का मतलब ही ये है कि आज़ाद रहो, और जो ईश्वर दे उस कला के ज़रिए उसको let it fall into place. But yeah, we live in a social structure. We live in basically an environment where we succumb to it all the time, succumb to the validation, succumb to everything. So I told my co-artists as well the same thing. I said, whatever you wish to do, your impulses, your understanding of everything, you definitely do it. And then we'll see what we can probably collaborate, conglomerate. And if I see something that that needs to be added or subtracted, I will tell you. But yeah, it's yours. It cannot be mine. And how did you reach here? मतलब इस टाइप की ग्रोथ या इस टाइप की थॉट प्रोसेस कहाँ से आया? I think मुझे लगता है जैसे जैसे जीवन में अहंकार गिरा वैसे वैसे चीजें थोड़ी बेहतर हो गई. And I think it's just the abolition or abandonment of I, me, myself all the time, which we are so strongly related to, and probably because we are in the body, and and also the whole environment that we are surrounded by these days is also I, me, myself for everything. I think the more it starts probably dissolving,
that's where you start moving slightly behind in the sense. अभी आपने Probably if it's a race, then you start moving behind the race. You're stepping away from it. You realize that Yeah. this whole race and whatever is the hype and hoopla and paraphernalia is all in mind projection, and an ego wants to keep it like that. I think probably over a period of time, the whole journey and the understanding and the dissolution of ego, not that it goes completely, it will never, because you are the body and in the body, but yes, जितना अहंकार, जितना अहम कम हो, जितना I me myself कम हो, तो उतना शायद चीजें easy हो जाती हैं, simplified हो जाती हैं, because then you also connect with people at a very basic level of love. Then थोड़ी बड़ी बात है, but then you and them becomes one. But Yeah. थोड़ा टाइम लगता है समझने में उन सारी चीजों को. आई थिंक मुझे लगता है समझ फिर भी आ जाता है बट एम्बॉडी नहीं हो पाता. हाँ, लेकिन वो अगर वो समझ में आएगा और एम्बॉडी ना हो तो कागजी समझ है, फिर समझ का कोई फायदा ही नहीं. मुझे लगता है अगर कुछ पढ़ लिया, देख लिया, सुन लिया, समझ लिया और सीखने का प्रयास कर लिया, अगर वो आत्मा में आया ही नहीं, अगर वो आपकी बीइंग का हिस्सा ही नहीं बना, फिर तो कागजी बातें हैं. ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, सब जगह लिखी हुई हैं, उसका कोई मतलब होता नहीं, वो कहीं पहुंचती नहीं है. और अगर वो आपके बीइंग के अंदर एसिमुलेट नहीं होती, जब तक वो अनुभव आपके अंदर नहीं आता, तब तक वो मुझे लगता है उसमें सच्चाई भी नहीं आती उन शब्दों के अंदर. शायद वो सच्चाई भी तब आती है व्हेन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू. आपके लिए एम्बॉडीमेंट कहाँ से आना शुरू हुआ? लाइक ये शुरुआत कहाँ से हुई कि जिसमें आप जैसे आपने कहा अहंकार, तो कब ऐसा हुआ कि मे बी किसी फेलियर ने आपके अहंकार को मे बी चैलेंज किया हो, बट एट द सेम टाइम आपने उसको फेलियर ना देखकर ग्रोथ समझा हो? ऐसा आपका कोई आई थिंक एक्सपीरियंस ऐसा तो शुरू से ही रहा. प्रॉबेबली बहुत सारी किताबें बचपन में स्कूल कॉलेज में पढ़ ली थी, जहाँ पे इट वाज ऑलवेज कि फेलियर एंड रिजेक्शन इज नथिंग बट जस्ट अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. सो वो तो रहा ही, वो तो कभी मुझे लगता है, एंड फेलियर वाज नेवर कंसिडर्ड. फेलियर वाज ओनली कंसिडर्ड एज फॉलिंग एंड गेटिंग अप. Like from all those Shiv Kheda books, all those self-help books of Zig Ziglar's and Shiv Kheda's and probably early years of, I don't remember the names now, but yeah, a lot of self-help books because there was no one to guide and teach and mentor at home probably. Which is your favorite one, the book that Um, really stuck out even till today, which you would recommend even today? आई थिंक ऐसा कोई फेवरेट तो नहीं है, बट कुछ किताबें हैं. वो इसलिए क्योंकि पहली शिव खेड़ा थी, क्योंकि वो ऑब्वियसली 2 decades बैक, तब तो कुछ समझ ही नहीं थी लाइफ के बारे में, तो उसने थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश की कि फियर ऑफ फेलियर क्या होता है, फेलिंग क्या होता है, रिजेक्शन से डील कैसे करते हैं. डील भी क्या मतलब, इट वाज मोर अबाउट दैट यू फॉल डाउन, यू गेट अप. इट्स नॉट अबाउट, आई रिमेंबर देयर वाज अ कोट व्हिच सेड सक्सेस इज अबाउट not failing but about how many times you get up after you fail. Yeah. So failure was never a word in the dictionary. It was always failing, that you fail. Failure becomes failure, or failing becomes failure when you just leave the ground. Yeah. Like I was a cricketer. For me, if you get out, that's not a problem because there's a next match. Yeah. But you don't come to the ground is probably failure, Yeah. right? So you come, you fail, you get up. You come, you fail. Because मुझे याद है हमारे जो टीचर थे, कोच थे, वो बड़े अच्छे थे. वो कहते थे कि आज हिमांशु तुमने 100 कर लिया ना, बिकॉज आई वाज ओपनिंग बैट्समैन, तो हमारे को तो 100 ही सिखाया जाता कि 100 बनाने हैं, कि अगर 100 कर लिया तो तुम्हारा 0 बुक हो गया है. वो कब होगा पता नहीं. So don't take this 100 to your heart as well, and don't take that 0 to your heart as well, because it's a game and it's going to happen. And probably शायद those are the things that got very catapulted in my life as well. कि यार वो अंदर आ गई सारी बातें as life also. So the cricket and its learnings also got transformed and transmuted into life. कि whatever happens, it's okay. Even if I won Natch, or even if I failed in the first or the second round of Khatron Ke Khiladi, Yeah. it was in a timeline of 3 months. हाँ, So life, that was actually my next question. कि, right after winning Nach Baliye and then right, getting the second episode I got eliminated, Yeah. and for Natch we were almost there till 13 weeks. Yeah. And post that we also won the show as well. Yeah. So this all happened like 19 July we won. I think September, October
was the second episode of Khatron Ke Khiladi shot in Buenos Aires, and I got eliminated. Yeah. So it's just in a But problem. didn't it like I know like बोलने के लिए जैसा अभी मैंने बोला कि वो बोलने के लिए यार हो उस जाता लम्हे है पे but उस लम्हे पे तो बुरा लगा था। हाँ। मैं ये तो कह ही नहीं सकता कि उस लम्हे पे बुरा नहीं लगा। ऑफ कोर्स उस लम्हे पे बुरा लगा था कि थोड़ा सा, और समझ भी ऐसे ही आती है ना, आपकी समझ हमारी बढ़ती है वहीं से है। उस समय ऐसा लगा ये कैसे हो गया, अभी तो जीते थे एक शो और यहाँ पे तो आप सेकंड राउंड में आउट हो गए, लाइक सेकंड एपिसोड में काइंड ऑफ फर्स्ट राउंड। तो उस मोमेंट पे when I was in Buenos Aires, I remember I called Amu also and she was also shocked, how did this happen? But probably this is how it was meant to, probably. Maybe I don't know, ये भी खैर अहंकार हो जाएगा कहना कि I wasn't fit for the show. Yeah. क्योंकि हम अपने आय को बार-बार ही importance देने की कोशिश करते हैं, whatever the reasons being, but I got eliminated. So कभी आप जीतते हो कभी हारते हो, ये तो होना ही है। मुझे लगता है आप बस जो करना चाहते हो अपना करते चलो। Life पर is very जब big अभी that आपने way. बोला कि थोड़ा बुरा तो लगा, तो जब उस टाइम पे बुरा लगा था तो उस टाइम पे आपने ऐसा क्या किया था, अपने आप को क्या बोला था या क्या किया था उस चीज से बाहर आने के लिए? मुझे स्पेसिफिकली तो याद नहीं क्या किया था, बट मैं ना बहुत ज्यादा चीजों को पकड़ता नहीं हूँ लाइफ में। हाँ, तो मेरा बड़ा सिंपल है, आउट हो गए तो आउट हो गए, नेक्स्ट मैच, ठीक है। और शायद तो बचपन से कंडीशनिंग थी, और जैसे मैंने कहा कि Like शायद cricket की हाँ, वजह लाइक से। क्रिकेट आल्सो, और प्रोबेबली बहुत सारी किताबें भी पढ़ ली थी उससे पहले, यू नो व्हेन आई वाज 19-20। तो फिर वहीं से, यू नो, समटाइम्स व्हेन यू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स ना, दे आल्सो कंडीशन योर माइंड। सो वो माइंड ट्रेन हो जाता है एथलीट की तरह, या एक रीडर की तरह, या एक बीइंग की तरह। एंड आल्सो आई बीन स्पोर्ट्समैन फॉर 12 इयर्स, प्लेड प्रोफेशनल क्रिकेट। सो ना मुझे लगता है आत्मा बहुत स्पिरिटेड है, यू नो, एक स्पोर्ट्समैन की तरह। वो फेलियर को, फेलिंग को, रिजेक्शन को ऐसे नहीं लेते कि खत्म हो गया सब। वो शुरू से ही सिखाया गया था। बस एक मैच है। हाँ, बस एक Next मैच है, इट्स ओके। हाँ, मतलब होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, नेक्स्ट I हो जाएगा। love this. I genuinely love this because as an actor, even I look at it, you know, कभी-कभी एक वो रोल नहीं मिलता जो बहुत ज्यादा चाहिए होता है, you know. I know. So उस टाइम पे just to remind yourself कि एक मैच था, एक मैच में आउट हुए, अभी तो पूरी इनिंग्स बची है। वो भी है, और इसके साथ मुझे एक और चीज ना अपने बारे में समझ में आ गई, आई थिंक काफी सालों पहले ही समझ में आ गई कि जो मेरी इच्छाएं है ना, वो बेकार है एक्चुअली। वो बेकार है मतलब क्या है, जब मैंने कोई ख्वाहिश रखी है वो अच्छा है पूरी नहीं हुई, क्योंकि शायद उससे ज्यादा, उससे बेहतर वो ईश्वर ने पूरा किया है अपने आप। ऑफ कोर्स उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है, उसके लिए पेशेंस रखा, सारी चीजें हुई, बट मेरी जिंदगी के पैटर्न्स में ये काम नहीं करता। आई थिंक ये मुझे समझ में आ गया बहुत साल पहले कि हिमांशु, तुझे अपनी सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, तो अपने आप जो चीजें होंगी, देन यू विल बी एबल टू फ्लो एंड सरेंडर। अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, मेरी ख्वाहिशें क्या होते हैं, फिर वो वही करती हैं कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एंड मेरे लिए वर्क नहीं करता। आई अंडरस्टूड माई सेल्फ वेरी क्लियरली दैट वे। Probably it works for somebody else, but not for me. So this flow and surrender. Yeah. What does this look like in the real world? In the real world, कुछ भी नहीं, जो हो रहा है उससे होने दो। Like okay, for example. और नाव में बैठ के चलते चलो, जहाँ पहुंचोगे, नहीं भी पहुंचोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज लाइफ में शायद कहीं पहुंचना तो है नहीं। मतलब मैंने बहुत कॉन्टेम्पलेट किया इन सारी चीजों पे, फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, फॉर द पर्पस ऑफ लाइफ, और व्हाट लाइफ इज, व्हाट आई कुड, एंड देयर हैव बीन फेजेस। in the phase before have been कि यार you should have a purpose and then you give meaning to life, but life जैसे जैसे और आगे बढ़ते हो तो समझ में आता है कि लाइफ का कोई पर्पस, कोई मीनिंग है नहीं। It's us who wants to give meaning to the life. Again, it's us also becomes I, me, myself, because we ego. again want to validate ourselves. So I'm also in the process of, over a period of time, understanding कि ये भी अहंकार ही हो जाता है। Ideally सिर्फ जीवन जीने के लिए है। Life is, ईश्वर ने जीवन जिया, मतलब दिया है आपको, God has given you life, क्या जाओ, I have given you this life, so why don't you just go and live it completely and fully experience, and also experience life holistically, मतलब not fragmented। Okay. मतलब होलिस्टिक का मतलब है कभी आप उस चेयर पे, कभी मैं उस चेयर पे, कभी मैं इस चेयर पे, कभी आप इस चेयर पे, समझे? कभी मैं उस तरफ, कभी मैं इस तरफ, कभी मैं यहाँ, कभी यहाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, हमें सिर्फ एक ही जगह चाहिए होती है, हम चिपक के बैठ जाते हैं, एंड वी थिंक दैट इज द वे टू लिव लाइफ, बट दैट इज नॉट द वे टू लिव लाइफ। प्रोबेबली लाइफ सेज एक्सपीरियंस मी इन whole, WHOLE, where you experience every facet of me,
that also means probably you experience the good, you experience the bad, good and bad as per whatever your conditioning is. You experience with both arms everything. I will give you everything. I'm so glad you said that because I've actually, ever since I was 14, I've had this philosophy in life that I want to live my life completely. उस टाइम पे तो मुझे लगता था कि my this go to sentence used to be like I don't want to wake up 50 one day and be like oh अगर मैंने ये किया होता तो काश ये हो गया होता मैंने ये किया होता, like I don't want regrets in my life. So I started out pretty young. I did hotel management. I was a cabin crew, so I've traveled to some 55 57 countries. Then like everything that I wanted to do in my life I did. And I think this lesson about surrender for me came also very, very vividly because after I did my hotel management, I was like, it was a professional course. So we were placed in hotels and we were like working. And then 6 weeks की छुट्टी में जाके हम एग्जाम्स देते थे, वैसे वाला सीन था. So 16 घंटे we're working and I'm like 17 18 at this time, right? And तो फिर मुझे हुआ कि ठीक है अब ना खत्म होने के बाद मेरे को ढंग से कॉलेज करना है तो एक बार मैं कॉलेज अप्लाई कर लेती हूँ फॉर द सेक ऑफ इट टाइप्स. तो आई वाज लाइक आई विल डू मास कॉम नाउ एंड आई डिड माय ग्रेड इन होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म बट पोस्ट आई वाज लाइक आई विल डू मास कॉम. तो आई अप्लाइड टू आईपी यूनिवर्सिटी एंड you will not believe my rank was 27. I was shocked. My whole family was shocked. हम ना literally roll number डाला and 27 came and we were like maybe that's like the total score that I got out of like maybe 500. And then I, not kidding, I put like random numbers in it. Random roll numbers मेरे आस-पास के to make sure that was actually rank and not the score. And now beat this, with 27 rank, I still did not get admission in that college. Because it was not meant to be. No matter, we tried so hard. But it didn't just fall into place. It wasn't meant to be. Why was, which I found out next year, I was cabin crew with Etihad. That was the last year Etihad came to India for recruitment. I went. I got in my first try. I moved to Abu Dhabi. And I was there. And I wouldn't have had all of those experiences if I would have, Probably in IPN University, nothing would have happened like that. Yeah, life would have been completely different. I would have been a completely... You were meant to probably go there. Yeah. Experience life. Yeah. And that's what, how you said. Yeah. God is like, तुम वो नहीं सोच सकते जो मैं तुम्हारे लिए create कर सकता हूँ. Yes. So... That's how I live my life. Yeah. Probably like that only. कि ठीक है, देखते हैं. Like Raghav also says, no? Whenever sometimes when we were doing Meisner, he would say, I asked some question कि ये कैसे होगा? I said, देखते हैं sir, we'll see. And I love that word. While performing also, while directing also, and in life also, when somebody asks something, I said, देखते हैं. पहले से क्यों predict करें, plan करें, anticipate करें, and then fall into the trap. What's the point? We'll take the moment as it comes, and then we'll move forward with it. Yeah. So tell me something. This flow and surrender that we're talking about for someone who's maybe new in the industry, if you had to guide them. Which industry? Film industry? Film industry, our entertainment industry. Ki if someone who's joined the industry as an actor or a director or a writer, anything. As a creative being, yeah. Yes, as a creative being, what would surrender or flow look like when you are in the midst of all of this chaos? How can someone practice this in their day-to-day life? पहले कर लो सारी जद्दोजहद. मतलब ये है कि पहले लड़ भी लो. पहले जितनी भी लग रहा है सारी चीजें जो करने लायक हैं या करनी चाहिए वो कर लो पहले, मुझे लगता है. क्योंकि उसके बिना होगा नहीं. अच्छा. हाँ, पहले कर लो. पहले जितनी भी लड़ाइयाँ लड़नी हैं, जितने भी झगड़े करने हैं, जितनी भी रेस का हिस्सा होना है, जितनी भी वैलिडेशन चाहिए, पहले एक बार ही कर लो. जो भी घर गाड़ी बंगला खरीदना चाह रहे हो और जो भी ख्वाहिशें अंदर हैं, पहले कोशिश कर लो उनको करने की. फिर बीच रास्ते में ही समझ में आ जाएगा. क्योंकि क्या है ना, ऐसे महसूस नहीं होगा, ऐसे सिर्फ शब्द रह जाएंगे, बातें रह जाएंगी. क्योंकि वो सारी इतनी डीप हिडन डिजायर्स होती हैं, जब तक उनका थोड़ा सा पूरा होना और काफी ज्यादा टूटना नहीं होगा तब तक सरेंडर आएगा नहीं. तब तक वो क्या होगा, सिर्फ ऊपर के शब्दों में सरेंडर आ जाएगा
लेकिन अंदर तक, आत्मा तक पहुंचता नहीं है वो। तो मैंने सब कर लिया है, और वो सारी जद्दोजहद, वो सारा भागम दौड़ी, सुबह उठना, ये करना, स्केड्यूल, 3 बजे 4 बजे 5 बजे, 50 चीज़ें, टेलीविजन में काम करना, 12-12, 15-15, 18 घंटे, 48 घंटे, बीमार होना, हॉस्पिटल पहुंचना, सब चीज़ें की हैं ना। फिल्में देख ली, फिल्में भी की, यशराज का शो भी कर लिया, धर्मा की फिल्म भी कर ली, नेटफ्लिक्स का शो भी कर लिया। तो जब आप सारी चीज़ें कर लेते हो, देख लेते हो, तब वो जाके पुख्ता हो जाता है आपके बीइंग के अंदर। उससे पहले तक सिर्फ अल्फाज है। उससे पहले तक सरेंडर ऐसा होता कि जब तक मेरे लिए है वो, जहां मेरा थोड़ा फायदा हो रहा है वहां पे सरेंडर है, जहां मुझे लगता है मेरा थोड़ा फायदा नहीं रहा है वहां सरेंडर हटाओ भाई। मैंने किया है ये। और जिंदगी में ना समर्पण का मतलब ना, ये धीरे धीरे समझ में आता है। समर्पण का मतलब है आपके बीइंग का डिसॉल्व हो जाना कंप्लीटली। दैट बेसिकली मीन समर्पण आधा नहीं होता कभी, कि आधी मतलब आधी तुम्हारी आधी मेरी, ऐसा नहीं होता। समर्पण का मतलब है कि पूरा सर टिका देना, राइट? जिस ब्रेन के अंदर, जिस माइंड के अंदर, जिस मन के अंदर, जो भी आपके बीइंग के अंदर जो सारी चीजें, उनका पूरा समर्पण, उसे ही समर्पण कहते हैं। उससे पहले तक तो म्यूचुअल ट्रांजैक्शन हो रहा है कि थोड़ी आपकी थोड़ी मेरी, आप मुझे पास करवा दो, मैं आपको 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। बस यही चल रहा है। ईश्वर के साथ भी म्यूचुअल ट्रांजैक्शन चल रहे हैं। मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा रिलेशनशिप चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, ये लड़की ये पसंद है, वो पसंद है, जो भी व्हाटएवर एक्स वाई जी, इट्स मोर म्यूचुअल ट्रांजैक्शन। जितने भी म्यूचुअल ट्रांजैक्शन है उसमें कोई सरेंडर होता नहीं। आप में कब आना शुरू हुआ ये सरेंडर? कहाँ कोई ऐसा मोमेंट जो आपको फील हुआ हो कि खुद दिखाओ कि ओ अब मैं बदल गया हूँ? आई थिंक बीच बीच के फेजेस होते गए, जहां वो मतलब आई थिंक पहले किताब थी पावर ऑफ नाउ, जो मेरे मेंटोर ने दी थी मुझे बहुत साल पहले, बिकॉज मेरा दिमाग कुछ ज्यादा चलता था। एज अ बिजनेसमैन सन, आई यूज्ड टू एंटिसिपेट अ लॉट, व्हिच वाज आल्सो an obstacle in acting because I never was in the present moment. I was always thinking about what's going to happen next. So he gave me this book. उस book से पहली बार समझ में आया stillness, surrender. Obviously that they were just words at that point of time. धीरे धीरे उनको जिंदगी में समझना शुरू किया। फिर मुझे लगता है धीरे धीरे इंसिडेंट्स भी हुए कि जैसे 2004 जी सिने स्टार्स की खोज happened. I met Amrita over there. And she became my girlfriend. और मुझे था उस समय, अगले साल हुसैन और टीना नचबलिए जीते थे। मेरा बड़ा मन था, हम लोग डांसर्स थे, हम यूज्ड टू डांस, आई यूज्ड टू डांस, कि हम लोग नच करेंगे तो प्रॉबेबली मैं कोई शो कर लूँ, वो कोई शो कर ले तो वो पॉपुलर हो जाए, फिर हम विल डू इट। तो बहुत कोशिश की, 2005, 6, 7, 8, 9, कुछ नहीं हुआ। शोज चल रहे हैं, शोज हो रहे हैं, कोई हिट नहीं हो रहा। 10, 11 फिर छोड़ दिया कि नहीं होना भाई, ये होना ही नहीं है। फिर 2013 में डैड की डेथ हुई। 2014 पूरा का पूरा ब्रेक फॉर एक्टिंग, नो एक्टिंग। 2013 पूरा ब्रेक एक्टिंग। 2015 I got married. January 24th, 2015 I got married. 1st February 2015, 7 days later I was offered Nachbaliya. And I was not even working for 1.5 years. You had gone back to I was handling my dad's business at that point of time because he passed away all of a sudden. And fortunately उस समय का जो नचबलिया था, उसका ना कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था that you have to stay there for 4 months. So अब ये डिजाइंड भी ऐसा था नेचर का कि यू नो, जो लोग ऑलरेडी टेलीविजन शोज कर रहे थे, पॉपुलर थे उस समय, वो अपना शो छोड़ के आ नहीं सकते थे 4 महीने के लिए। तो ये वो लोग कर सकते हैं जो थोड़े बहुत पॉपुलर हैं और साथ में एक जोड़ी भी है, और जो भी फ्री हैं at this point of time, who are not doing a television show at this very moment. Wow, so Nachbaliya was your comeback. It was, you can say that, right? Comeback कह लो, कुछ भी करो, but I'm saying I wanted to do it in 2004 and 5. It happened in 2015. So what I'm trying to say, and maybe that was the right time, और शायद हमारा उसी समय कुछ चीजों का होना, मिलना, देखना, जीतना सब तय था। तो मुझे लगता है फिर हो गए ना, अपने प्लान्स करके देख लिए, कुछ हुआ तो है नहीं, धज्जियां उड़ी हैं, फिर क्यों बार बार धज्जियां उड़ानी। इससे बेहतर है समर्पण करके आगे बढ़ते हैं। So and also dad's demise happening all of a sudden in 2013 on my birthday. तो मुझे लगता है eye opening incidents होते हैं ना, अचानक से मैं पार्टी कर रहा हूँ सिंगापुर में, and all of a sudden in couple of hours he's not there, he just had a heart choke. So then you realize कि life is also very fragile, you know. इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, खुद को भी कहता हूँ कि यार ठीक है, आपको जो भी ख्वाहिशें हैं, डिजायर्स हैं, आप ये बनना चाहते हो, वो बनना चाहते हो, बट इसके बीच में कभी जीवन छूट जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। और सारी डिजायर्स आपके दिमाग की क्रिएशन है, क्योंकि मैं कलाकार हूँ
और इस देश में कला की थोड़ी इज्जत है। अगर मैं किसी और देश में पैदा होता जहाँ कला की इज्जत नहीं होती, इतना एस्पिरेशन नहीं होता, इतना स्टारडम नहीं होता, तो फिर कुछ और होता, राइट? तो फिर इतना ज्यादा क्यों उसको सर पे चढ़ाना? ये तो ब्लेसिंग ही एक तरह से। True. अगर मैं ग्रीस में होता या फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री में होता और मैं होता क्रिएटिव बीइंग ही, बट वहां पे इतना स्टारडम नहीं है ना जितना यहाँ पर है। जितना लोग यहाँ पर कलाकारों को सराहते हैं या सर आंखों पर रखते हैं, ये तो बहुत बड़ी खुशनसीबी है। Opportunities इतनी सारी है। बहुत सारी चीजें हैं, तो फिर बट उसके बीच में खोना भी नहीं है ना सब चीजें। आप डोंट गेट लॉस्ट इन दोज एस्पिरेशंस दैट यू लूज योरसेल्फ। अभी जैसे you talked about your sudden demise of your Yeah. father, तो of course at that moment तो it feels like everything's like you don't know what to think. That kind of grief I cannot even imagine. What did that do for you in that moment? सबसे पहले तो मुझे समझ में आया, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है उसका नाम छिन जाता है। तो सबसे पहले तो एक आ जाता है, बॉडी को ले उठाओ, बॉडी को ये करो, बॉडी को नहलाओ, बॉडी को ये करो। और मैं सोच रहा हूँ, मैं वहां बैठ के देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है, कि अभी तक तो इनका नाम अशोक मल्होत्रा था, कुछ घंटों पहले तक, अब बस बॉडी 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 हो रहा है। तो वही आपको उस लम्हे पे आपको समझ में आ जाता है कि यार ये जो नाम जिसकी शोहरत के पीछे हम भागते हैं, ये नाम जिसके चक्र में हम फंस जाते हैं और लोगों से मांगते हैं कि हमें वैलिडेट करो इस नाम के लिए, ये नाम एक लम्हे में छूट जाता है जैसे आपकी मृत्यु होती है। तो और मृत्यु जो भी हम कहें, जैसे भी कहें, ये किसी के हाथ में नहीं है। हम जो मर्जी कर लें, ये एक लम्हे में हो जाती है। और मैंने बहुत क्लोज इंसिडेंट्स देखे। मेरे दोस्त थे डायरेक्टर वसीम साबिर, ही वाज अ टेलीविजन डायरेक्टर। 1 जनवरी 2000, अब मुझे डेट नहीं आता, बट आई रिमेंबर 1 जनवरी ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड, वेरी पॉपुलर टेलीविजन डायरेक्टर, ही सेड, भाई ऐसा है वैसा है, सब चीज़ें हैं, काम वाम का सही चल रहा है और मैंने घर खरीद लिया है बांद्रा में, तुम आना, हम मिलेंगे, मैं कल आता हूँ मिलने के लिए। ऐसा आ जाओ भाईजान, आप जब आना चाहो, घर खुला। 2 तारीख को शाम को खबर आती है, इज नॉट देयर। He was 33 at that point of time. He was opening a drawer. कुछ तो पता नहीं मेडिसिन निकाल रहे थे, क्या हुआ, ब्रेन हैमरेज हैपेंड एंड ही wasn't there. और मुझे शायद फेसबुक से पता लगा था, या फेसबुक से नहीं, किसी दोस्तों ने बाद में फ़ोन किया कि वसीम भाई की डेथ हो गई। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स बहुत करीबी हुए। तो शायद वो सारे इंसिडेंट्स ने जीवन के बहुत सारे रुख खोल दिए कि यार कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो इतना ज़्यादा चीज़ों को के चक्र में मत फंसो कि आप ही उस चक्रव्यूह के अंदर फंसते चले जाओ एंड देन यू गेट डिसॉल्व इन दैट। स्टे अवे ऑल्सो, थोड़ा सा बाहर भी, थोड़ा सा लाइफ को बड़े पैमाने पे देखो, जीवन को बड़े पैमाने पे देखो और जियो। When you were younger, you said you want people to remember you even if you या वो कैसे मतलब shift ये आया? बड़ी ही बेवकूफाना सी बात है, मुझे लगता है। एक टाइम था, शायद ये इसका सिरा, हाँ मैं भी नहीं समझ पा रहा। ये सिरा तो शायद 2nd 3rd स्टैंडर्ड से था कि मरने के बाद भी लोग याद रखें। और बाद में अभी कुछ समय पहले ही, इनफैक्ट कुछ 6 महीने साल पहले, 1.5 साल पहले के आसपास मुझे समझ में आया ये अहंकार का सबसे बड़ा रूप है। कि जहाँ पे वो कहता है कि मरने के बाद में मुझे याद रखें, का मतलब आपके अंदर का अहंकार इतना बड़ा होगा उस समय से कि वो अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाना चाहता है इतिहास में। तो ये अहम का सबसे बड़ा रूप है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे वो अहम टूटा भी है ऑब्वियसली, वो अहम हेल्प, उसने इनिशियल ईयर्स में हेल्प भी बहुत की। हेल्प कैसे की? उसने जेस्ट दे दी हर चीज की। हाँ, You understand all the discipline, all the मेहनत। मैंने कहा ना, इसलिए सब कर लो पहले। वो सारी जद्दोजहद की 15-15 घंटे तक मेहनत हो रही है, सुबह 4 बजे से ग्राउंड पे है और रात के 11 बजे तक ग्राउंड पे ही है। हमारा ग्राउंड ही खत्म नहीं हो रहा, प्रैक्टिस रात को घर पे आके बॉलिंग में भी लगे हुए हैं, बैटिंग में भी लगे हुए हैं। You understand? उसने जेस्ट ने रातों जगवाया, अभी मेहनत भी बहुत करवाई, सब चीजें करवाई। मे बी इन द इनिशियल ईयर्स, क्योंकि वो आपको कुछ देता है, यू वांट टू डू the समथिंग, fire, yeah. and then over a period of time you realize कि I also don't have to get burnt in this fire. Yeah, of course. तो मैंने बड़ी अच्छी बात एक बिशन सिंह बेदी जी की सुनी थी। He was an Indian cricketer, played for India. He said, जिस इंसान के भीतर सुकून और जुनून का सही मिश्रण होता ना, उसे इंसान कहते हैं। Say that one more time. कि जिस इंसान के भीतर, जिस इंसान के अंदर सुकून
और जुनून का सही मिश्रण होता है, उसे इंसान कहते हैं। Yes. सुकून इज Peace. और जुनून इज पैशन। तो दोनों एनर्जीज, शिव शक्ति जब कॉन्ग्लोमरेट होती हैं मैस्कुलिन फेमिनिन एक लेवल पे, तब उसे इंसान कहते हैं। अदरवाइज क्या होता है, लोग अपने जुनून में बर्न हो जाते हैं या अपने सुकून में आलसी हो जाते हैं। तो दोनों का मिश्रण है आपका जिंदगी जीने का, ये रास्ता होता है जहाँ पे जितना भी जुनून आपके भीतर है, उस आग में ना जलना नहीं होता। लाइक मैंने एक शो किया था, वेयर आई वाज प्लेइंग हरियक्ष, यशराज का शो था, बहुत बड़ा शो। यशराज कभी आया नहीं, सिर्फ सोनी पे आया था। सो उसमें ना आई हैड द पावर ऑफ फायर बिकॉज देयर वर 7 पीपल सेविंग द वर्ल्ड, मी, नुसरत, अदर पीपल वर आल्सो देयर। दिस वाज इन 2009 and 10, and so there were 7 people saving the world. One, somebody had the power of wind, somebody had the power of fire. It was inspired from X-Men and kind of series. Very big show. So उसमें ना मेरे हाथों में आग होती है, fire, and the first shot is he gets burnt in his, because he doesn't know how to handle it. And then slowly and steadily start meeting people who starts guiding and mentoring them. Then obviously then fire gets laser sharp, and then it can just pierce through it. So that's how life is also. जहाँ आप अपने जुनून को एकत्रित कर लेते हो, you accumulate it, and then you also wrap it with peace. Yeah. And then it just probably laser sharp energy goes absolutely like pinpointed, specific. It just doesn't burn you. That's how I learned. That's so perfect, actually. Like literally one of the most perfect mantras to live by. Passion and peace. हाँ, मैंने भी सुकून और सुना था, जुनून। और उन्होंने, मुझे याद है उस समय, मतलब बहुत साल पहले, उन्होंने कहा था MS धोनी के अंदर है ये। Yes, that's true. उन्होंने मतलब he clearly said, इतने 20, 25, 30 सालों से मैं लोगों को देख रहा हूँ क्रिकेटर्स को, वो तो बहुत पुराने हैं, वो तो इंडिया के बहुत रिनाउंड क्रिकेटर रह चुके हैं। अंगद बेदी उनका बेटा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने कहा था बहुत सालों के बाद मैंने अगर किसी में देखा है जुनून और सुकून का सही मिश्रण, तो MS धोनी में देखा। I mean, ये बात मैं कर रहा हूँ, मैंने भी 10 साल पहले सुनी होगी बात, शायद उससे भी पहले, अर्ली इयर्स ऑफ क्रिकेट और सुनना सब चीजें फिर देख देख के हमने भी सीखा, समझा, अपने जुनून को एकत्रित भी किया, उसको एक दिशा भी दी, उसके अंदर जलना भी नहीं है, सुकून भी चाहिए, क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा होती थी, एंथुसियाज्म इतना ज्यादा होता Drain हो जाओगे ना। था कि वो कहीं ना कहीं ड्रेन भी करता है, और उसके चक्कर में आप आगे ही भागते हो लम्हे से। जब ज्यादा एनर्जी होती है तो आप लम्हे से आधा कदम आगे चल रहे हो, उस मोमेंट को भी नहीं एंजॉय कर रहे Exactly. हैं। सो थोड़ा सा फन करते हैं, पूरा फन कर लेते हैं। ठीक है? एक ना रैपिड फायर करेंगे, Okay. बट क्वेश्चंस थोड़े इसी टाइप के होंगे, बस आपको जल्दी जल्दी थोड़ा आंसर देना होगा। ओके, सो आई कॉल इट साइकोलॉजिकल रैपिड फायर। कुछ भी चलेगा। वन थिंग दैट इंस्टेंटली ब्रिंग्स यू बैक टू यू, सुकून। योर इमोशनल रेड फ्लैग। अगर रेड फ्लैग होगा तो मुझे लगता है किसी का बहुत ज्यादा अहंकार, वो रेड फ्लैग हो जाता है मेरे लिए, कि देन कनेक्शन ही नहीं हो पाता। हाँ, कि मतलब जो सिर्फ जिसका मैं ही खत्म नहीं हो रहा, उसके साथ वी कैसे बनेगा? उसके साथ बात ही कैसे होगी? अब वो अम्यूज करता, पहले तो लगता था अब ठीक है भाई, तू अपनी जिंदगी जी ले अच्छे से, तू भी यहाँ से गुजर जा, देख ले। A fear you have outgrown but still remember clearly. The journey is to dissolve all the fears. अभी कोई बचा हो? ऐसा इंटरनेट, मतलब अब पता नहीं कौन से लम्हे पे क्या वापस आ जाएगा, बट जब डेथ को बहुत क्लोजली देख लेते हो तो फिर इतना ज्यादा फियर रह नहीं पाता। 3-4 बारी तो मैंने अपनी डेथ को देख लिया है। Somebody had pointed a gun at one point of time, कोई झगड़ा हो गया था दिल्ली में। What? हाँ, लॉन्ग बैक। एक बारी ट्रेन हाईजैक हो गई थी तो कट्टा रखा था किसी ने सर पे। एक बारी ये हुआ था, एक बारी दो दोस्त की शादी में, मेरठ में शादी थी, बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड है, तो हम लोग गए, मैं स्टेज पे था उसके बाजू में, और किसी का मामा और किसी के चाचा, 2 guns पॉइंटेड लाइक दिस। Okay. हाँ, मतलब ये जो भी ऐसे रैंडम इंसिडेंट्स हो गए लाइफ में। Yeah, that does take out a lot of fear out of हाँ, you. मतलब वो आपको आँख खुल जाती है ना उस लम्हे पे। मुझे बस इतना लगता है कि जब आँख खुल जाए किसी भी इंसिडेंट से, तो दोबारा बंद नहीं करनी चाहिए, कि उसको थोड़ा सा खोल के रखो। ऑफ कोर्स वो बंद होने का प्रयास करती है बार बार, कंडीशनिंग, हैबिट्स, आदतें, बट थोड़ा सा उसको बैक ऑफ द माइंड रखो कि यार हो सकता है कभी भी कुछ भी किसी भी लम्हे पे। True. What makes you feel genuinely loved? What makes me feel genuinely loved is hugging and kissing. One sentence your father said that still lives in your head. Patience and perseverance. Your I need a break sign. When my body tells me.
and I listen to it very carefully. That is very important, listening to your body. Your body tells you everything. I take a break then. What heals you unexpectedly? Love. Love. In an instant. Are you a big Harry Potter fan by any chance? No. Why? Dumbledore. Dumbledore's solution to everything was love. Acha, okay. So that's how, like, every time you say love, I get remembered of Dumbledore. That's what I felt about my life. Yeah. That the denominator of my being is love. Yeah. Probably over a period of time, I also understood the denominator of existence is love. That whatever we do is only because of lack of love. We want all the validation because we are not feeling loved. We want all the, क्योंकि मुझे शोहरत चाहिए थी ना जीवन में, वो शोहरत चाहिए इसलिए थी क्योंकि बहुत ज्यादा लैक होगा प्रेम का, इसलिए आपको प्रेम सबसे चाहिए. सबसे चाहिए. इसलिए अतुल सर के साथ उस दिन बैठे हुए थे, we were doing, he also had this question and answer, तो उन्होंने भी कहा था कि कलाकार को तो बहुत होता है कि प्रेम एक से थोड़ा ना चाहिए, सबसे चाहिए. तो वो कितनी होती है, पर धीरे धीरे समझ में आता है. पर है भी, end of the day it all does come to love. हाँ, मतलब सारी तालियों की गड़गड़ाहट वही तो है और क्या है. और पैसा कमाना भी वही है, क्योंकि पैसे से हम अपने आप को ये प्रूव करना चाहते हैं, नाम वर्दी ऑफ योर लव. तो मैंने सब महसूस किया है, पैसे को भी कमा के, वो शोहरत भी देख के, वो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भी. देन आई रियलाइज मैं इनका गुलाम नहीं बन सकता, क्योंकि अगर मैं गुलाम बन गया तो फिर मेरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल हमेशा लोगों के हाथ में रहेगा. तो इसलिए वही प्यार जब अंदर से आने लग जाएगा, खुद के साथ, जेन्युइनली वाला अंदर Yeah. से आने लग जाएगा ना, तो बाकी सब डिसॉल्व when हो you start जाता है. feeling it, एंड आई फील ये जो अहंकार की भी हम बात करते हैं ना, एक्चुअल में अगर वो खुद से प्यार, लाइक आई नो सेल्फ लव इज अ वेरी थ्रोन अराउंड टॉपिक दीस डेज. हाँ, वो शब्द थोड़ा सा अलग सा हो गया बट है. वो सेल्फ लव जब बहुत ज्यादा जेन्युइनली एम्बॉडीड होता है ना, तब आपके अंदर अहंकार रहेगी ही नहीं. हाँ, क्योंकि प्रेम और अहंकार चलते नहीं. प्रेम का मतलब ही अहंकार का डिसोल्यूशन है. मतलब जब दोनों के आई डिसॉल्व होते हैं तब प्रेम जागृत होता है. जब मेरा भी आय और आपका भी आय है तो भी कभी बन नहीं सकता. तो आपको अपना आय छोड़ना पड़ेगा, मुझे अपना आय छोड़ना पड़ेगा, तब हम दोनों एक धरा पे आके मिल पाएंगे, जहाँ पे जिसे हम यूनियन कहते हैं. सो प्रेम में एक और एक हो जाता है, अध्यात्म में एक और एक शून्य हो जाता है. Beautiful. ऐसा कुछ. That is so beautiful. I love it. ऐसा कुछ. Okay, this is so not a rapid Yes. fire. I am so used to not making not rapid fire. अच्छा, कोई नहीं. Continue. What is your version of peace right now? Like when we were starting this podcast, उससे कुछ लम्हे पहले यहाँ पे silence था कुछ लम्हों का. That was peace for me. और अदरवाइज किताबें पढ़ के तो बहुत सुकून मिलता है. My go-to peace is my books. One thing that fame taught you that success did not. I think मेरे लिए तो फेम और सक्सेस दोनों एक ही थे, क्योंकि मेरे लिए सक्सेस का मतलब पैसा कमाना था नहीं, मेरे लिए सक्सेस का मतलब पावर ट्रिप्स थे नहीं, मेरे लिए सक्सेस का मतलब शोहरत थी, और शोहरत का नकलीपन मुझे दिख गया. वो हासिल करने के बाद, मतलब आने के बाद तब समझ में आ गया कि इससे कुछ होना नहीं है, ये सब ऐसे. पर ये होता है कि आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हो ना, जब आपको मिल जाता है. Like I had this thing, I was very, very ambitious, bachpan se. So I had this thing that I wanted my own property at the age of 23. And I would do like, you know, hustle and like sub hard work, all of that. And मिल गया, हो गया, कुछ feel नहीं हुआ. And I was like, पर अभी तो खुशी मिलनी चाहिए थी ना, अभी तो एक, like don't get me wrong, of course I was happy. बट एक वो जो सोचा था कि मिलेगा, वो नहीं मिला. या आई थिंक बिकॉज वो सभी के साथ होता है. वो ऐसा है, वो रेत में कहते हैं ना, वो डेजर्ट में दिख रहा होता है, आपको लगता है कि हीरे चमक रहे हैं, लेकिन है वो पानी की कुछ बूंदें ही जो आपके पास भी है, लेकिन सूरज की रोशनी से आपको लग रहा है कि हीरे चमक रहे हैं. तो ये वैसा ही कुछ है जो हमें लगता है कि वाह, यहाँ पहुंच जाएंगे तो बहुत कमाल का कुछ हो जाएगा. तो इसलिए मैं कहता हूँ एक बार पहुंच जाओ, देख लो, क्योंकि जब तक पहुंचोगे नहीं तब तक फॉल्स को फॉल्स देख नहीं पाओगे. तब तक वो फॉल्स ट्रू ही नजर आता शुरू हो जाएगा. सो आई थिंक लाइफ की सबसे बड़ी, लाइफ की समझ भी यही है, टू सी फॉल्स एज फॉल्स and to live in what is and not live in the projected image of the mind. This we do a lot. यही तो क्या हो सकता है? सेल्फ लव का मतलब मुझे नहीं पता लोग क्या सोचते हैं, बट सेल्फ लव का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, समझ, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, खुद को जानना. जब मैं खुद को जान जाता हूँ तो मैं आपको भी जान जाता हूँ. जब मैं आपको जान जाता हूँ तो प्रेम हमारे बीच अपने आप जागृत हो जाता है, क्योंकि मैं और आप अलग है नहीं. प्रेम का सबसे बड़ा
सर्वोच्च स्थान ही वही है जहाँ मैं और आप एक हैं। वही होता है ना प्रेम, और क्या होता है अदरवाइज? तो फिर तो म्यूचुअल ट्रांजैक्शन है कि मुझे तुम कुछ दो, फिर मैं तुम्हें कुछ दूं, फिर तुम मुझे दो, फिर मैं तुम्हें, ये देना लेना तो फिर म्यूचुअल ट्रांजैक्शनल है। अगर हम प्रेम की बात करते हैं, रिश्ते अलग होते हैं, प्रेम अलग होता है। Okay, so the next game is called red flag, orange flag, or green flag. So red flag is basically, total no. Orange is ke okay, can fall this side, can fall that side. Okay. Green flag is Yes. good to go, right? Okay. Tell me. So I'm gonna give you some situations or statements, and you tell me if that is a green, orange, or red flag for you. Okay. Okay. So someone says they're surrendered to art, but checks their Instagram like every 10 minutes. फिर वो तो रेड फ्लैग ही हो गया ना एक तरह से। मतलब ये तो खुद ही कॉन्फ्लिक्ट हो। हाँ, वही। एक तरफ आप कह रहे हो आप कला के अंदर आपने समर्पण कर दिया है। कला के अंदर एक्चुअली समर्पण तभी होगा जब वैलिडेशन डिसॉल्व होगी। तो जब वैलिडेशन डिसॉल्व होगी तो शायद इंस्टाग्राम अगर देखेगा तो शायद फॉलोअर्स के लिए नहीं, फिर जो भी मे बी आई डोंट नो कि क्या कमेंट्स आ रहे हैं, क्या लाइक्स आ रहे हैं, वो भी नहीं, कितने फिर likes वो आ रहे हैं। वैलिडेशन हर तरह की छूट जाएगी। An actor refuses TV because they only want films. यार जिसकी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं उसके लिए ग्रीन फ्लैग हो जाता है वो। हाँ। ठीक है, जिसकी ख्वाहिश नहीं होगी, जो कंफर्ट जोन में भी होना चाहेगा। तो आपके लिए? मेरे लिए तो मैंने किया, मैं तो मना किया टेलीविजन को, बहुत मना किया। तो ग्रीन फ्लैग। हाँ ठीक है, ग्रीन सही, मतलब मना किया। अब उसमें गलत हुआ या सही हुआ मुझे पता नहीं, बट मना किया बिकॉज टेलीविजन बांध रहा था हर बारी। रोज आओ, रोज एक्टिंग करो, वही 12 सीन करो, मत पूछो क्या क्रिएटिविटी है, पैसे लौट जाओ। पैसा तो कमाने के लिए आया नहीं था ना इस शहर में, आया तो क्रिएटिविटी और कुछ करने के लिए था ना बड़ा। तो फिर वो मेरे साथ तालमेल बैठ नहीं रहा था टेलीविजन का बहुत समय तक इसलिए जाना पड़ा। तो ग्रीन फ्लैग। ठीक है, ग्रीन सही। A partner supports your career and also keeps you brutally grounded. Probably a red flag then. Yeah. देखो सपोर्टिंग का मतलब मेरे लिए सपोर्टिंग का मतलब ब्रूटल होना नहीं हो सकता। सपोर्टिंग का मतलब है नर्चरिंग। अगर जैसे एक पेड़ को या पौधे को नर्चर करते हैं ना, अगर आप उसको बार बार कॉन्स्टेंटली फ्लैग ही करते रहोगे फॉर एग्जाम्पल, तो फिर तो बेचारा पौधा वैसा वाला सिस्टम है। तो मुझे लगता है नर्चरिंग मीन्स थोड़ा सा प्रेम से, बट अगेन हर इंसान अलग अलग। No, works. Someone wants to be famous before they know what they are good at. That's not right. Right? पहले तो खुद को ही जान लो कि अपने अंदर का हुनर क्या है, तभी तो आप तो probably a red flag. Yeah. An actor says, I do not care about fame anymore, but still loves a good compliment. Then it's a red flag. Yeah. A person uses spirituality to avoid taking responsibility. अब ये ना बड़ा ये सारी ये जितने भी सेंटेंसेस हैं डाइकोटोमिक हैं। डाइकोटोमिक कैसे हैं? मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी को हम रिनाउंसिएशन समझते हैं और मटेरियलिज्म को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। यू अंडरस्टैंड कि स्पिरिचुअल का मतलब कि अब हम रिनाउंस कर दिया, अब हमारी कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ऐसे ही देखते हैं। करेक्ट? कि छोड़ छाड़ के चले गए। करेक्ट? स्पिरिचुअलिटी का मतलब इस तरह से कुछ देखा जाता है जहां पे रिनाउंसिएशन को बहुत ज्यादा बड़ा माना जाता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लगता है कि हम जब जैसे जैसे लोगों के साथ हैं, जो भी हम इस जीवन के अंदर है, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए। मुझे ये दोनों शब्द ही समझ में नहीं आते। इसलिए क्यों? स्पिरिचुअलिटी का मतलब रिनाउंसिएशन भी नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नाम का कोई शब्द ही नहीं है। ये भी ह्यूमन क्रिएटेड, मैन क्रिएटेड, हमने अपने उसके लिए बना लिया। एक मटेरियल हो गया तो स्पिरिचुअल हो गया उसका ऑपोजिट। अगर हम असली स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो वो तो कहता है कि अगर कहते हैं कि सभी माया है, करेक्ट? हम जैसे कहते हैं शास्त्रों में कहा जाता है माया है, लीला है, सब चीजें, दिस होल यूनिवर्स, देन व्हाई डू वी नीड टू रन अवे फ्रॉम इट? देन वी स्टे हियर। When everything is an illusion, then we don't run away from the illusion. We stay in the illusion, knowing that it's an illusion and it's a bubble. Yeah. Right? तो ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज हम मोस्टली भागते रहते हैं predominantly. That's there. And दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए कि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशंस, इसने तो प्रेम को खत्म कर दिया है कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। फिर प्रेम कहाँ बचता है इसके अंदर? जहाँ प्रेम होता है वहां भी शब्द नहीं आता।
वहां पे ये होता है कि यार जब आप और मैं एक ही हैं तो खत्म हो गई बात, तो थोड़ा सा डाइकोटमिक हो जाती हैं चीजें. Now we're going to play our favorite game, which is like going on from our season 1 also. Okay. It's called Two Truths and One Lie. Okay. And the twist is the two truths and one lie. All three situations have to be from the entertainment industry. So I fell sick on a television set, and I was hospitalized, and kept sleeping for 36 hours straight away. That's one. Two is I shot 200 days for a project, which was only like 24 episodes. Okay. Okay. And the third one is that I rejected a big banner film only because they were telling me to share the room. Okay, guys, what do you think? Second is a lie. Second is the truth. Second is the truth. Third is a lie. Third is a part truth and part lie. Trick question. Part truth, as in I was not in the right frame of mind, and this was, I'll tell you now, this was for Dharma Shersha. Okay. And I remember probably definitely not in the right frame of mind, and we were supposed to go to Palampur, and I was speaking to the EP and he's saying, sir, room share karna padega aur aisa hai waisa hai, sir mujhe nahi karna room share yaar वगैरह, and all that stuff was happening. And then I said मैं नहीं आऊँगा सेट पे वरना तो all these things. Then उसने मुझे समझाया काफी सारी चीजें बैठ के कि नहीं sir, we are having some issues, we are shooting in Kargil and this happens and that happens and all those things. And then thank God I was थोड़ा समझदार enough to understand, but initially I was like मेरे को नहीं करनी है यार, ये पैसे भी नहीं दे रहे हो, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, and all that stuff. But then obviously Shersha was Shersha. So I'm grateful and thankful to my stupid, I just put it away. ट्रिक वाला था ये, ठीक है, हाँ, टेक्निकली trick. काउंट नहीं होता है, मेरा रिकॉर्ड बनना बहुत अच्छा है. Two सेकंड Truths, वाला One तो यार Lie. यशराज का शो ही था, 200 दिन शूट किया हम लोगों ने, 25 एपिसोड्स. या इट वाज अ ह्यूज शो. वो शो के बारे में ज्यादा पता नहीं, द 7 जो शो The था Seven. हमारा यार, उसके बारे में. So I'm gonna try playing one more rapid fire. Okay. Let's see how this one goes. Okay. Okay. So if you had to go on a road trip with anyone from Bollywood, okay, Okay. who would it be? वामिका कब्बी. I'm fond of her. Okay, if there was a lizard sitting in your room just observing you all day, what would she think about you? How stupid this boy is. He keeps reading all the time. And he's probably looking outside the window, and whatever he's looking up, probably some pigeons and crows and some greenery outside his window. If you had to describe your life in one song, what would it be? मैं पल दो पल कर रही हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी मस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. Very nice. Your favorite Bollywood cop? यार मुझे बड़ा क्यूट लगा था रणवीर सिंह इसमें, सिम्बा. Simba. हाँ, ये बड़ा कूल प्ले किया उसने, कुछ अलग ही. I think. But of course Ajay Devgn as Singham also was very good. Yeah. Your favorite villain in Bollywood? Initially was Amrish Puri Saab. I think amazing what he did. Maybe from someone in the recent. This Vijay Verma in The Heart was very very underlayered. बहुत कमाल का काम. And also Shahid nahi, sorry, Rajkumar in Omarta. Oh my God, yeah. That was a crazy Yeah, one. that was also very very good. Yes. True. Okay, so one habit you have on set, which is not your proudest. ऐसे कोई हैबिट है नहीं सेट की यार, जो लाइफ की हैबिट है वही सेट की हैबिट है, ऐसा कुछ नहीं है. Your most embarrassing set story. आज के टाइम पे एक बार हुआ था यार, एक्चुअली सेट स्टोरी से भी ज्यादा वी वर सपोज्ड टू परफॉर्म एक भूल भुलैया तो हमने किया था, एक भूत फिल्म का कोई ट्रैक था हम लोगों को करना था, एंड दिस वाज अ 7.5 minute परफॉर्मेंस दैट वी वर सपोज्ड टू डू. और टेक्निकल रिहर्सल वाली रात को उन्होंने कैंसिल कर दिया था, नेक्स्ट डे हमें परफॉर्म करना है. नाउ दे कैंसिल द होल एक्ट, और हमें पूरा एक्ट नया प्रिपेयर करना है इन द नेक्स्ट 36 hours, जिसमें पहले तो म्यूजिक आएगा, अभी म्यूजिक नया बनाना पड़ेगा, पूरे नई थीम बनेगी, कॉन्सेप्ट बनेगा, कॉस्ट्यूम्स बनेंगे, रिहर्सल्स होंगी, परफॉर्मेंस होगी, और 7.5 मिनट का परफॉर्मेंस था, और वो हम लोगों ने 36 hours के अंदर क्रैक किया था. We did the film भूल भुलैया. Initially we were doing the film Bhoot, a supernatural thriller, but that was not working very well. They cancelled it, और हम लोगों ने कर लिया था, and we also got 30 in that, so which was like really really hyped. Yeah. Wow. मतलब ये तो That's मतलब I think amazing. God's grace था.
कि कैसे हो गया, ईश्वर ही जाने। 36 घंटे के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं था, मतलब कि पूरा नया ट्रैक आएगा। अभी तो ट्रैक भी नहीं बना था, पहले ट्रैक बनेगा, फिर वो कोरियोग्राफर उसके ऊपर कुछ बनाएगा, मतलब कुछ स्टेप्स बनाएगा, जो भी वो अपना कुछ सोच समझ के क्रिएटिविटी वाइज, देन वी विल लर्न इट। देन उसके अंदर हमें मल्टीपल टाइम्स रिहर्सल्स भी करनी है। एंड ऑल्सो इन दैट एक्ट आई हैड टू एंकर एंड डांस टुगेदर. Wow. So I was playing the character. It was a live natak kind of a thing, 7.5 minute, where I was also the anchor, the Sutradhar. I was also the actor. So I had this in-ear mics also, and I was performing also. We were changing the clothes on set also, on stage. So, and we also got 30. That's crazy. Wow, amazing. Yeah, this was a blessing in disguise. Sometimes, you know, that you feel that, oh my God, what is going to happen now? And it probably creates a new dimension. It opens up a new dimension. When all the chips are down and you realize there's nothing, now we may get eliminated because things are just getting off. वहाँ से एक नई शुरुआत होती है. It's like rising of the phoenix. And I think from that moment, that performance, that was the 6th performance, I think people in Star Network must have decided that we have the winners. क्योंकि वो थी वैसी वाली. क्या बात है. Grace. Amazing. Talking about Nach Baliye, actually, okay, that was it for the rapid fire. We're never going to be rapid. Let's just मान ही लेते हैं. I know. But talking about Nach Baliye and talking about Amruta, I wanted to ask you this. You know, in one of your interviews, you had mentioned that she's like just this pure natural talent. Like she just comes and in 5 minutes she's ready. Yeah. And as opposed to, you know, being an actor who has worked so hard on, you know, your craft. कभी-कभी ऐसा नहीं लगता यार ये तो बड़ा unfair है. इनिशियली लगता था कि यार ये कैसे इतनी जल्दी कैसे हो जाता है यार. बट उसने जीवन के बहुत सारे तजुर्बे पहले देख लिए ना, तो इसलिए उसको कला इजीली, मतलब क्या होता है जब आप जिंदगी को बहुत पहले से देख लेते हो, when you've gone through a lot of struggle and strife in the initial years. I came from a privileged backdrop. She came from an environment where the struggle and strife was there in the early years. So then your being gets opened. And once the being gets opened, then art can use your being as an instrument to portray itself. That is actually gold. Can you say that last line again? That was really When beautiful. your being gets open, then art, कला, आपके being का इस्तेमाल कर सकती है खुद को बाहर निकालने के लिए. Art can use your being to portray itself. यही हो रहा है एक्चुअली. हम पोर्ट्रे नहीं करते आर्ट को, आर्ट पोर्ट्रे करती है आपके फॉर्म को यूज करके. तो जितना ज्यादा इट्स लाइक अ फ्लूट. सो ऐसे फ्लूट का इंटरनली वुड का क्लीन होना बहुत जरूरी है फॉर द एयर, दैट इज द कला, टू फ्लो थ्रू इट सो दैट द म्यूजिक कैन कम आउट. अगर उस बांस में, उस वुड के अंदर वो क्लीन नहीं है तो फिर कला नहीं निकल सकती, फिर म्यूजिक निकलेगा ही नहीं. That way. So, while working with Amruta, what has she taught you that maybe none of the workshops could? I think the learning is कि जितनी मर्जी आप मेहनत करो, जितनी मर्जी आप तपस्या करो, सीखो, सब चीजें करो, but उसके बाद let it go also, so that it becomes effortless. You understand? कि a lot of times it also can also come across as a lot of effort. सहज होना. मतलब क्योंकि उसके अंदर नेचुरल था ना. ऑफ कोर्स उसने कहानी, लेकिन उसके बीइंग से मैंने सीखा है. क्योंकि जो नेचुरल होते हैं उनका अपने आप चीजें सहज है ना. हमें सहज बनानी पड़ी क्योंकि हम बिजनेस फैमिली से आए. कॉन्स्टेंटली दिमाग आगे ही भागता रहा. नंबर्स, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, दिस दैट. वो उस फैमिली से नहीं आई जहाँ पे नंबर्स थे. वो आई वहां से जहाँ मॉम डांसर थी, मॉम सिंगर थी, तो वहां से भी कुछ आया. हमारे तो घरों में ऐसा कुछ था ही नहीं. हमने तो सब पहले क्रिकेटर था, तो उसके बाद ये जर्नीज अलग अलग है कंप्लीटली. तो वो ऑलरेडी वहीं के आसपास थी ना, कला के आसपास ही थी. और माँ बाप की भी देन होती है. हमारे माँ बाप की देन नहीं थी उस प्रकार से. तो हमने सारी चीजों को एक एक कदम आगे बढ़ के समझा है ना. वैसे फिर जिस कंडीशनिंग से वो आई, वहां पे बहुत सारे संघर्ष शुरू में ही था. तो संघर्ष आपके अंदर बहुत सारी चीजें खोल देता है. जब वो खुल जाती हैं तो बहुत अच्छे से आप उसको एग्जिबिट भी कर पाते हो ना. आपने जीवन देख भी लिया ना छोटी सी उम्र में. हमने जीवन थोड़ा बाद में देखा, क्योंकि जैसे जैसे घटनाएं हो वैसे जीवन दिखता है ना. एक बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में जीवन दिख नहीं पाता. तो देन यू कैन पोर्ट्रे आर्ट एज व्हेन द माइंड्स होराइजन एंड द बीइंग होराइजन वो बढ़ता है आपका.
तो बस अलग अलग लोग हैं दोनों कि Journey अलग हाँ जर्नी अलग अलग है। Yeah. तो मेरी जिंदगी में बाद में लिखा था, उसकी जिंदगी में पहले लिखा था, तो पैरेलल ट्रैक्स होते हैं लाइफ में। Yeah. All right. The last question that I want to ask you is, what advice would you give to people who are new to the industry or they're trying to find their footing? What would you like to tell them? यार ये ना सवाल हर बारी आता है और हर बारी समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दिया जाए इसका। I think everyone has their own journey, so let them be first. मैं तो बस इतना कहूँगा, just be true to yourself. किसी और को देख के मत आओ, किसी और की शोहरत को देख के मत आओ। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ है जो बाहर निकलना चाहता है, जो अपना रास्ता बनाना चाहता है, तभी आना बेहतर है। वरना दूसरे को देख के आना, फिर हम भटक जाते हैं। That's true. Actually, इतना yeah. कुछ थोड़ा बहुत No comparisons. Just believe in मतलब- yourself and stay true. to whatever you yourself. feel for yourself, experience for yourself. किसी और को देख के आना वो सही नहीं है। Perfect. Thank Yeah. you so much. That's Thank you so it much. for today. Thank you so much for being here. I genuinely had such an amazing time talking to you. I hope you had a good time. Absolutely. Thank you so much for inviting, and it was really fun. Really enjoyed it. इस बहाने खुद से रूबरू हो जाते हो बार-बार। So just want to say thank you, and yeah, of course, everyone who's watching, please follow Garima. That's on Instagram first of all, and of course, then Beyond Spotlight with Garima. Like, share, and subscribe. Thank you. Mahalo. Bye. Thank you. See you. Bye.